So hello guys, now today we are going to start new unit in organic section, okay, and that is basic principles of organic chemistry. 11th में आपको एक बहुत ही important unit है दोस्तों, क्योंकि इसी चैप्टर पे, इसी यूनिट पे आपके सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है, यूनिट है, वो डिपेंड है, ओके. तो let us focus on this unit because this unit is very important, is going to very important for your organic chemistry. It is what you can say, it's a basic foundation for the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपको यूनिट्स है 11th में या 12th में, वो इसी चैप्टर के अराउंड घूमते हैं, ओके, बिकॉज ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स दे आर इन दिस यूनिट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is nothing but, organic chemistry is the branch of chemistry which deals with study of carbon and its compounds. कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स है, इनकी जिस केमिस्ट्री में स्टडी होती है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ओके. अब देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट? Organic chemistry is branch of chemistry that deals with study of carbon and its compounds. Okay, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जिस केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं उस केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? ओके. अब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स है दोस्तों, राइट? देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड द chemistry, study of chemistry is also very interesting. You know, the starting compound, one carbon containing compound is hydrocarbon. That is actually it's a methane. You know what is the formula for methane? It is CH4, right? Carbon is bonded to 4 hydrogen atoms in this case. So CH4 is the basic what? Compound of only one carbon. Now carbon has tendency to get linked with itself and form a long chain. That tendency of carbon to get linked with itself and forms a long chain is called catenation. तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी जो है कार्बन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बिकॉज अगर मीथेन में आपने देखा तो एक ही कार्बन है, बट इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, billions of carbon atoms, they are linked with each other. So this is the beauty of the carbon atom, to get linked with each other, and that tendency of carbon is called catenation. Okay, तो उसको हम कहते हैं catenation. Okay, तो ये कार्बन की जो केमिस्ट्री है और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ओके, all the types of hydrocarbons that we are going to see in these organic compounds, carbon and its compounds, and the study of the carbon and its compounds, that is nothing but the organic chemistry. Okay, so that we are studying in the organic chemistry. Now the chapter is what? Basic principles of organic chemistry. अब organic chemistry में basic principles कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले तो मैंने कहा आपको कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन की जो स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आल्सो गिव्स अस so many medicines, okay, that we get from pharmaceutical industries, right? Pharmaceutical industries, they give us medicines, and these medicines are nothing but the organic compounds. Hence the study of them is very important, because these organic compounds they play important role in our life. Okay, so the study of organic compounds is very also important. Okay, so we will study organic compounds and we'll study the basic principles of organic chemistry. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और आपको अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए, इस यूनिट में बेसिक प्रिंसिपल्स समझ में आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी यूनिट्स है आपको बहुत ही इजी जाने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द पॉइंट in the basic principles of organic chemistry. First point in this unit is what? Structural representation of organic molecules. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये कंसेप्ट आपको पता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला? अब समझो, मेरे पास है, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो मैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज व्हाट? मीथेन का अगर एग्जांपल लिया मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन? इट इज, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH4 मीथेन, ठीक है। अब मैं लिखता हूं दोस्तों स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, what is the difference between molecular formula and structural formula? Okay, we are looking at the structural representation of organic molecule। organic molecule को हम structurally कैसे represent करते हैं? structural formula अगर देखा हमने, तो इसका structural formula क्या आता है? देखो, carbon is bonded to 4 hydrogen atoms। carbon is linked to 4 hydrogen atoms। that is very wonderful। now see, what is the difference between these two, molecular formula and structural formula? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज द फार्मूला विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओके, दैट इज काउंटेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 C and subscript is 1। here there is nothing, means there is only one carbon and 4 hydrogen atoms, okay। so the number of, total number of atoms of different element, that is shown in molecular formula। atoms of different element, total number of atoms of different element, they are shown in what? molecular formula। and structural formula, in the structural formula, how these atoms of different element they are attached, the formula which indicates the actual attachment of atoms of different element is called structural formula, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ में आ गया होगा आपको। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं हम? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है उनकी एक्चुअल अटैचमेंट कैसी है वो हम शो करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम डायरेक्टली काउंट करते हैं कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, और डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ओके। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको लिखना है। देखो, इथेन को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, दिस इज द मीथेन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके। अब इथेन का अगर फार्मूला आपने देखा तो इथेन में 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, ओके। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स। on each carbon there are 3 hydrogens, ठीक है, 3 हाइड्रोजन on each carbon। अब इसको मुझे शॉर्टली लिखना है, ये है इथेन, ओके, दिस इज व्हाट इथेन। अब इसको मुझे शॉर्टली लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? C2H6, ओके, C2H6। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? कार्बन एटम्स आर 2, ओके, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन्स कितने हैं? 6। तो C2H6 is the molecular formula of ethane, but what is the structural formula? How these 2 carbons they are linked with each other? How these carbons are attached to the hydrogen atoms? They are shown in what? Structural formula। So the formula which indicates actual attachment of atoms of different element is called structural formula, and the formula in which there is what? Total number of atoms of different elements they are shown, that is called molecular formula। Very simple, this is the difference between molecular formula and structural formula। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का कैसे करते हैं हम, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलेज है वो हम डिस्कस करेंगे आप, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, अब फर्स्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अभी जो मैंने बताया, देखो, सॉरी, अभी जो मैंने बताया CH4 का, दैट इज मीथेन का, जो मीथेन का फार्मूला है वो है CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 का यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो, ये जो फार्मूला है CH4 कार्बन का, कार्बन को अटैच 4 हाइड्रोजन है, मीथेन का जो फार्मूला है, इट इज व्हाट? अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके, इट इज व्हाट? अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन।
बट कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, देखो डैश स्ट्रक्चर, ओके, इट इज व्हाट डैश स्ट्रक्चर, डैश formula, you can write dash formula. Dash means what? It is nothing but the structural formula, okay, but it is also called as a dash formula of methane. अब यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन में, वो बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं बाय डैश. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और जिसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है. सो दिस इज कॉल्ड डैश फॉर्मूला, ओके. अब डॉट फॉर्मूला भी है आपको, ओके. दिस इज कॉल्ड लेविज डैश फॉर्मूला एंड लेविज डॉट फॉर्मूला. अब डॉट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो कार्बन है, कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आई एम ड्राइंग अराउंड कार्बन, ओके. अब कार्बन की वैलेंसी है 4, तो मैं 4 डॉट निकालता हूं. देखो ये जो 4 डॉट है दोस्तों, दिस 4 डॉट्स बिलोंग्स टू कार्बन बिकॉज कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही उसकी वैलेंसी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए. और हाइड्रोजन जो है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है. सो दिस इज व्हाट लेविज डॉट स्ट्रक्चर, ओके. यू कैन से इट्स अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन dot structure, dot structure, okay, electron dot structure, ठीक है. और यू कैन से डैश फॉर्मूला, ये डैश फॉर्मूला है मीथेन का. अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ओके. दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे हमने जो बॉन्ड है वो डॉट से दिखाया है और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो डैश से लिखा है, राइट. अब ये 2 डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, दिस 2 डॉट्स रिप्रेजेंट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके. सो यू कैन राइट हियर 2 डॉट्स बिटवीन द 2 एटम्स indicates 2 dots between 2 atoms, between 2 atoms represents a covalent bond, ठीक है. वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. वेरी सिंपल, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो. ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट और यू कैन टेक जस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेविज स्ट्रक्चर. इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज व्हाट लेविज स्ट्रक्चर. एंड डैश फार्मूला को हम कहते हैं सिंप्लीफाइड लेविज फार्मूला, ओके. सो राइट डाउन दैट आल्सो पॉइंट. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेविज स्ट्रक्चर, ओके. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, लेविज स्ट्रक्चर. एंड डैश फार्मूला इज कॉल्ड लेविज, सिंप्लीफाइड लेविज फार्मूला, ओके. वेरी सिंपल. ये लेविज ने दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्स, डॉट स्ट्रक्चर या डैश स्ट्रक्चर, इसलिए आपको ये याद रखना है. देखो इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स are called Lewis structures, ओके. उन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेविज स्ट्रक्चर्स. एंड डैश फार्मूला को हम कहते हैं, डैश फार्मूला रिप्रेजेंट्स लेविज फार्मूला, रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स सिंप्लीफाइड लेविज फार्मूला, ओके. तो ये लेविज फार्मूला है और ये लेविज स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये दोनों भी क्या है, डैश हो या डॉट हो. कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और डैश, ओके. 2 dots represents between the 2 atoms, 2 dot represent a single covalent bond, ठीक है. and a single dash represents a single covalent bond. Double dash represents double bond.
ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, देखो ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर दिया आपने। अब मैं दिखाता हूं, देखो कोई भी स्ट्रक्चर हो, अब मुझे इथेन का निकालना है डॉट स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रॉ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इथेन। अब आपको डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर आपको निकालना है। लेविस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे निकालूंगा मैं, देखो बहुत ही सिंपल है। इथेन में है कार्बन 2, आपको पता है, सो 2 कार्बन में ड्रॉ करूंगा। कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। एक कार्बन तो अराउंड हो गया, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये कार्बन जो है पहला, उसके 4 डॉट, उसके अराउंड 4 डॉट होने चाहिए। 4 डॉट हो गए। इसके अराउंड भी 4 डॉट होने चाहिए, 1 2 3 और 4 हो गए 4 डॉट, ओके। बिकॉज कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल ईच कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कार्बन के दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट्स, ठीक है। ये कार्बन के डॉट्स हैं। अब मैं हाइड्रोजन के भी डॉट निकाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के डॉट। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों ऑफ इथेन। अब सिंप्लीफाइड लेविस स्ट्रक्चर, नाउ 2 डॉट्स बिटवीन द 2 एटम्स, दे रिप्रेजेंट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका डैश स्ट्रक्चर अगर निकालना है आपको, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। सो यू कैन राइट डॉट स्ट्रक्चर एंड डैश स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ओके, एटसेट्रा of any hydrocarbon or alkane, ठीक है। So this is what the concept of first structural representation में हमने देखा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस स्ट्रक्चर एंड डैश फार्मूला और सिंप्लीफाइड लेविस फार्मूला, ठीक है। तो हमने ये दोनों भी देखे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, एंड दैट इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला, दैट इज व्हाट द कंडेंस्ड फार्मूला। कैसे हम कंडेंस करके या लिख सकते हैं, शॉर्ट करके किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप इसी तरह से लिखोगे, ओके। हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू राइट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट वी आर लुकिंग एट, ओके। फर्स्ट वी हैव सीन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और which is also called Lewis structure, and electron what dot structure, that is called Lewis structure, and dash formula, that is simplified Lewis formula, ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं condensed formula। सेकंड इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज व्हाट condensed formula। अब condensed formula हम कैसे दिखते हैं, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये condensed formula, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हाउ टू राइट condensed formula of any molecule, देखो अब मेरे पास है समझो ब्यूटेन, ओके। तो ब्यूटेन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो CH3, ठीक है। मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूं, ये है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज व्हाट N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन कार्बन, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सिंप्लीफाइड लेविस डैश स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड लेविस डैश फार्मूला, ठीक है। CH2 और लास्ट है CH3। ईच कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी, राइट। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ईच कार्बन सेटिस्फाइड इट्स 4 वैलेंसी, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स आर देयर। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखना है आपको, तो C4H10, C4 और 3 + 3 6 6 + 4 10, C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, N ब्यूटेन, ठीक है। अब इसको मुझे शॉर्टली लिखना है दोस्तों, तो दो तरह से मैं लिख सकता हूं। कंडेंस्ड फार्मूला यू कैन राइट बाय 2 ways, okay। You can write condensed formula A like this, CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो ऐसे आप लिख सकते हो, बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन में दिखाने नहीं है।
या आप दूसरे तरह से लिख सकते हो, देखो CH3, ठीक है। अब CH2 कितने यूनिट है, 2, and then CH3. So in this way also you can write, okay, you can write by both the way, CH3 CH2 CH2 CH3 or CH3 CH2 twice CH3. CH2 आइडेंटिकल यूनिट है, वो 2 है, तो इसलिए मैंने कॉमन निकाली CH2 और twice. Okay, so we can reduce this formula, the main formula you can reduce and simplify it, and you can write shortcut for that formula, and that is nothing but what, condensed formula. Okay, you can write condensed formula of any organic molecule. Okay, organic molecule को आप condensed formula में बहुत ही easy तरह से लिख सकते हो, बहुत ही easy. Okay, identical आपको क्या करना है, ग्रुप को कंडेंस करना है और लिखना है उनके नंबरिंग्स. अब यहाँ पे CH2 यूनिट थे इसलिए मैंने CH2 ट्वाइस लिखा, टर्मिनल CH3 और सॉरी टर्मिनल CH3 है. अब CH3 CH2 ट्वाइस और फिर CH3, इनको कंडेंस किया और लिखा, ठीक है. अब आप बोलोगे ये CH3 क्यों नहीं लिखे, अब ये टर्मिनल है, साइड को है, तो आप वैसे नहीं लिख सकते इनको. ओके, CH3 टर्मिनल CH3 लिखा है और बीच में जो है वो कंडेंस किया और लिखे CH3 CH2 twice CH3. Okay, so this is what the condensed formula of N-butane. So note down this point also. तो आप इसका डेफिनेशन आप लिख के लो. Complete structural formula can be simplified. Write down definition. Complete structural formula can be simplified by hiding. अब हाइड करते हैं हम आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स. ओके, राइट डाउन. फर्स्ट डेफिनेशन लिखो. Complete structural formula can be further simplified. Complete structural formula. Complete structural formula. Complete structural formula can be simplified, further simplified, further simplify कर दे हम इसको structural formula को. Complete structural formula can be further simplified with hiding hide क्या करते हैं हम, with hiding some or all the covalent bonds, some or all the covalent bonds. एक तो covalent bond को हम हाइड कर दे, some or all the covalent bonds. ओके, कुछ covalent bond को हम हाइड करते हैं या all covalent bond को हाइड करते हैं, and indicating the number of identical groups, and indicating the number of identical groups, identical group जो है वो इंडिकेट करते हैं. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Complete structural formula can be further simplified with hiding of some or all covalent bonds and indicating the number of identical groups attached to an atom. एटम को हम अटैच करते हैं बाय सबस्क्रिप्ट. ओके, बाय अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है, बाय अ सबस्क्रिप्ट, एंड दैट इज व्हाट resulting formula of compound is called. Resulting formula is called what? Condensed formula is called condensed formula. ओके, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला को हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला इज फर्दर सिंप्लीफाइड. कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, विथ हाइडिंग सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब देखो हमने ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने ऐसा लिखा था CH3 CH2 CH2 CH3. उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाए. इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन अटैच है. कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला को हमने सिंप्लीफाई किया. फर्दर इट इज सिंप्लीफाइड बाय हाइडिंग सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड, और क्या किया हमने, एंड इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स. अब इसको मैं और तरीके से मैंने बताया आपको, ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 ट्वाइस CH3, ठीक है.
इंडिकेटिंग द आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम। अब इस कार्बन को CH2 अटैच है, ठीक है, ठीक है। और इनको क्या किया मैंने, एक सबस्क्रिप्ट दे दी, कितने, ट्वाइस है। ओके, आइडेंटिकल एटम्स रिजल्टिंग फार्मूला इज कॉल्ड व्हाट, इट इज दिस identical atoms they are represented by subscript। identical groups attached to an atom, identical जो ग्रुप है, जो एटम को, इस कार्बन को अटैच है, इस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन को CH2 CH, इस कार्बन को CH2 अटैच है, तो वो मैंने क्या किया, रिड्यूस किए, या मैंने उनको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम बाय सबस्क्रिप्ट। एक सबस्क्रिप्ट दे दी आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स को, ठीक है। CH2 ग्रुप दो थे तो उनको मैंने रिड्यूस किया और डायरेक्टली लिख दिया CH2 ट्वाइस CH3। ओके, तो ये हो गया द रिजल्टिंग फार्मूला, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फार्मूला। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो सम आर ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर in this case they are hidden, some or all the covalent bonds they are hidden, and identical groups they are shown by subscript। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं, देखो आपको समझने के लिए। देखो मैंने, आप समझो, यहाँ पे एग्जांपल लिया पेंटेन का। पेंटेन में कितने, पेंटेन या हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन है दोस्तों। ओके, सो 6 कार्बन यू कैन राइट इन दिस केस। अब देखो CH3, यहाँ पे 2 कार्बन और आपको बढ़ाने हैं, हेक्सेन में होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिख सकते हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हेक्सेन यू कैन राइट, you can draw and you can write also condensed formula, okay, of it। अब देखो तुमने, मेरे पास एक हेक्सेन, हेक्सेन मींस कार्बन एटम्स 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कार्बन को मैं हाइड्रोजन अटैच करता हूं सो दैट इट्स वैलेंसी शुड गेट सेटिस्फाइड 4, ओके, शुड बी 4, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, जिनको इनको, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए हर एक कार्बन की, हो गई। ओके, अब इसको, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कैन बी रिड्यूस्ड और सिंप्लीफाइड, फर्दर सिंप्लीफाइड बाय हाइडिंग ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स, सम और ऑल। यहां पे मैं सब कोवेलेंट बॉन्ड को हाइड कर रहा हूं, CH2 CH3, ठीक है। अब ये CH2 यूनिट कितने हैं दोस्तों, 4 है, तो इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस फार्मूला एज अ CH3 CH2 4 times and then CH3। So this is what the condensed formula of hexane, okay, condensed formula of hexane, okay। So this is what about the second structural representation of organic molecule। First we have seen the Lewis electron dot structures or Lewis dot structure and Lewis dash formula या Lewis formula, जिसको हमने कहा simplified Lewis formula, dash formula, dot formula। फिर उसके बाद देखा हमने कंडेंस्ड फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कैन बी रिड्यूस्ड टू कंडेंस्ड फार्मूला। अब लास्ट हम और एक देख रहे हैं, वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला, इट इज आल्सो कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला, bond line formula or zigzag formula। How to draw bond line formula? Next, write down bond line formula or zigzag formula। Bond line formula or zigzag formula। Zigzag means here the bonds, carbon bonds, zigzag formula, okay, the bonds, carbon bonds, they are shown by zigzag lines, very interesting, okay, bond line formula, note down this, or zigzag formula। okay, now this bond line formula means, in this bond line formula the carbon bonds, they are shown by zigzag lines, okay। carbon and hydrogen atoms, they are not shown in this formula। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम आपको नहीं दिखेंगे, और कार्बन जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज शोन बाय अ जिगजैग लाइन एंड हेंस द फार्मूला इज कॉल्ड जिगजैग फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट shown
in this formula. Okay, and the bonds between carbon carbon, or you can write the lines representing carbon carbon bonds are drawn, representing the lines उन्हीं को हम कहते हैं bonds. The lines representing carbon carbon bonds are drawn, carbon carbon bonds are drawn, इनको हम ड्रॉ करते हैं कैसे? The lines representing carbon carbon bonds are drawn in a zigzag manner, in a zigzag manner. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं. देखो एग्जांपल मेरे पास है, समझो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज व्हाट नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन है कार्बन की, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और उसको हम कहते हैं ब्यूटेन. ठीक है, अब ये ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है. अब इसको मैं कैसे दिखाता हूं? देखो स्टार्टिंग कार्बन बॉन्ड लाइन फार्मूला मैं ड्रॉ कर रहा हूं. स्टार्टिंग कार्बन 1 2 3 4. ठीक है, ओके 1 2 3 and 4. Carbon carbon bonds 1 2 3, 3 lines are there. 1 2 and 3 lines are there, and these 3 lines they are shown, are represented in a zigzag manner, and carbon and hydrogen atoms they are not shown in this formula. This formula is called bond line formula or zigzag formula. So this is what bond line formula of butane. Okay, this is bond line formula of butane. Bond line formula of butane. तो कार्बन और उस कार्बन को अटैच जो हाइड्रोजन है वो शो नहीं करते इस स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन फार्मूला में. ठीक है, अब समझो मेरे पास है एक अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और एक एग्जांपल ले रहा हूं. देखो अब मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज व्हाट ब्यूटेन. ठीक है, आप पेंटेन का भी कर सकते हो, हेक्सेन का भी लिख सकते हो, हेप्टेन का भी लिख सकते हो, यू कैन राइट. और अल्किन के भी हम निकाल सकते हैं, अल्किन के भी ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे देखो पेंटेन का अगर निकालना है आपको, पेंटेन का भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, समझो मेरे पास है, और एक एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल पेंटेन, और एक ले रहा हूं. देखो पेंटेन, एन पेंटेन या पेंटेन, जिसमें हम लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला यू कैन राइट. ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आपको लिखना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला CSF, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. कार्बन के कितने निकालने हैं आपको? 3 4 और 5, और उसको अटैच हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, जिसको हम कहेंगे डैश स्ट्रक्चर, लेविस डैश स्ट्रक्चर, और सिंप्लीफाइड लेविस डैश फार्मूला, राइट. लेविस डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डैश स्ट्रक्चर. ठीक है, लेविस डैश स्ट्रक्चर हमने निकाला, CSF, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब इसको मुझे कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है, कंडेंस्ड फार्मूला. कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखूंगा मैं? CH3 शॉर्टली CH2 व्हाट थ्राइस और CH3, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला. और आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला निकालना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला. तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे निकालोगे आप? देखो आइडेंटिकल जो ग्रुप्स है उनको आप रिड्यूस करोगे, सॉरी आइडेंटिकल, इसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला में आप कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे, और 5 कार्बन जिगजैग लाइन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. The lines between the carbon, how many lines are there? 1 2 3 4. This is one line, second line, third line, fourth line. Okay, so the line between carbon they are shown by zigzag manner. They are shown in a zigzag manner or way. Hence this formula is called
bond line formula. So these are the three main ways to represent the molecule. Okay, these are the basic ways to write, how to write or how to represent organic molecule. Firstly, we have seen the Lewis dot and dash structure, right? Second, we have seen what condensed formula of organic molecule, and then we have seen the bond line formula. Hope you understood all these formulas, how to draw the structure of different molecules, ठीक है, by Lewis dot and dash structure, then condensed formula and as well as bond line formula, ठीक है. Okay, after that we will see how to represent थ्री डायमेंशनली मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड बाय विच फॉर्मूला थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड. ओके.